Good morning, student. Welcome to our e-class. Let's learn English. We will read about our first chapter, class 5th English. The title is We Shall Overcome. This lesson was written by Charles Albert Tindley. है ना? जो पार्ट है जो अध्याय है चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले द्वारा लिखा गया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अपने बचपन में ये गाना सुना होगा, Here we see recite the given lines together with your teacher. Recite the given lines with your teacher. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जनरली ये गाना आपने सुना होगा, आपने सुना है ना? जनरली वही इसी लेसन में हम यहाँ पे देखेंगे कि इस गाने में जो ये बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग है जो कवि ने लिखा है, पोइट ने। चलो लेट्स रीड द सिंग एंड द सॉन्ग हियर। ओके, स्टैंजा द वर्ड मीनिंग्स। ओपन द बुक। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, oh, I do believe, oh, we shall overcome day. Here, now we will see here that first of all, we see here, we shall overcome. Here is shall. Shall is the helping verb of the future indefinite tense. And now overcome यानी विजयी होना। क्या होता है? विजयी होना। That means poet want to say that he has no doubt about success. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Now what meanings here? Overcome, succeed, succeed यानी होता है सफल होना, someday, one day, deep in my heart, undoubtedly, doubtlessly. That means निसंदेह. And confidence. Here is a confidence. Confidence का मतलब विश्वास. CONFIDENCE. Confidence. Confidence यानी विश्वास. So here is the line says that here the poet says. Here we are watching. The poet says that he has no doubt about success. कि उसे सक्सेस के बारे में कोई भी संदेह नहीं है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। And a day will come, और एक दिन आएगा when we will succeed in getting over all our problems. एक दिन आएगा जब हमारी सारी समस्याओं को हल करने में सफल होंगे। प्रॉब्लम्स का अर्थ क्या होता है? समस्या। जनरली पोइट ये कहना चाहता है कि हमारे जीवन में अक्सर क्या आती है? बहुत सारी समस्याएं आती है। तो हमें आगे बढ़ते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप आगे बढ़ते रहें और अपनी समस्या को हल करता रहें। तो नेक्स्ट स्टेंजा आ रही है यहाँ पे। We shall walk hand in hand. We shall walk hand in hand. We shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall walk hand in hand someday. Here is the word meaning. Okay, now the word meaning is walk. Walk that means move. Walk means क्या? आगे बढ़ना. Walk यानी आगे बढ़ना. Hand in hand, together. Together means spelling is the TOGETHER. That means साथ साथ. Now in the next stanza, here there is expressions here of the poet. The poet says, that means कवि कहता है that he has firm belief, कि उसे पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। belief यानी क्या होता है? विश्वास। That a day will come, कि एक दिन आएगा। will come यानी आएगा, एक दिन आएगा। when the difference का मतलब अलग अलग। thoughts यानी विचार। what do you mean by thoughts? thoughts यानी क्या होता है? विचार। अलग अलग विचार हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। will end and all people of the world would move together with love. That means all the world will live together with love. इन सारा संसार वो एक साथ है, वो प्रेम से रहेगा और उनके विचार वो एक समान हो जाएंगे। In the third stanza, we see, we are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today.
यस, अफ्रेड का मतलब होता है फियर, फियर का मतलब डरना। दैट मीन्स पॉइंट वांट टू से दैट कि अब हम नहीं डरेंगे, वी आर नॉट अफ्रेड, हमें डर नहीं है ना। या वर्ड मीनिंग देख रहे हैं हम लोग, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या है, टू फियर, फियर का मतलब डरना, ये डरना, एफ ई ए आर, फियर एंड डरना। एंड टुडे यानी दिस डे, एंड इस दिन हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और निडर होकर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम अपने कार्य करते जाएंगे। इन द fourth stanza we will also see here, the truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart I do believe the truth shall make us free someday. It also truth, truth that means fact, truth that means क्या होता है, fact, fact का मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कवि कहना ये चाहता है कि एक दिन आएगा, जितने भी फैक्ट्स हैं, ट्रुथ है, सच्चे हैं, वो होंगे। The truth make, the truth shall make us free, the truth shall make us free, truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. This is a very interesting song for the guys, childrens. Now, truth, truth यानी fact, fact यानी सत्य है। Freedom, freedom means independent, independent मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र होना। And us यानी we all. That means in the lines, in expressions, the poet says, कवि कहता है that a day will come, कि एक दिन आएगा, when all people would know, कि सब सभी लोग जान जाएंगे, जो सारे लोग हैं, कि उस जान जाएंगे किसके बारे में, कि what is truth, सत्य क्या है, and this truth, और ये सत्य would make us free from all illusions. illusion का मतलब बुरे विचार, ये जो सत्य है वो हमारे बुरे विचार से हमें मुक्त कर देगा, जो भी सत्य है वो हमें क्या करेगा, बुरे विचार से मुक्त कर देगा। तो इस तरह कवि ये कहना चाहता है कि हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इन फिफ्थ स्टैंजा वी आल्सो सी, we shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart I do believe we shall live in peace someday. Here is a peace, peace का मतलब होता है क्या, क्यूरल फ्री, दैट मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जिसका मतलब होता है शांति। क्या होता है, शांति, शांति से रहेंगे हम लोग। एंड शैल लिव, रिमेन रहेंगे, रिमेन का मतलब रहना। व्हाट डू मीन बाय रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, तो बाकी बच जाता है। तो हियर वी सी द पोएट सेज दैट ही हैज फर्म बिलीफ, यानी कवि यहाँ पर कहता है कि मुझे दृढ़ विश्वास है, बहुत पूर्ण विश्वास है कि दैट ए डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है युद्ध, क्या होता है, युद्ध, द्वंद्व, अमंग द पीपल, जो सारे लोगों के बीच में द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व है, आपस में झगड़ने का, एक दूसरे के झगड़ने का काम करते हैं, है ना, उनके विचार में आपस में मेल नहीं खाते, तो संसार में जो सारे लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने जो द्वंद्व हैं उनको समाप्त हो जाएंगे, ये सारे सारे विल एंड, वो सारे समाप्त होंगे, एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल लिव एंजॉय द पीसफुल स्टेट, और जो सारे के सारे हैं वो पीसफुल स्टेट पे रहेंगे। इस तरह से ये चैप्टर था हमारा फर्स्ट, इसमें हम, कवि ये कहना चाहता है कि हम अपने जीवन में कामयाब होंगे। आपने ये चैप्टर तो पढ़ा है, ये वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा, वैसे आपके क्वेश्चन आंसर्स में है, आप हार्ड वर्ड्स लर्न कीजिए, अपने घर पे बैठ के इनको हार्ड वर्ड्स कीजिए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू दैट, and now learn also the song. Okay, today I will share all of you